Today we are in the last lecture of chapter number 1, integers. Today we will learn how to divide an integer. अभी तक हमने पढ़ा था addition of integer, subtraction of integer, multiplication. Now we shall learn about the division of integers. So starting with division of integers. Here I am having a question. Minus 672. The sign is of minus is divided by minus 21. मतलब माइनस माइनस से मतलब आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा. ओके, सो द आंसर वुड बी पॉजिटिव. देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इस तरह 672 यहाँ पे माइनस और माइनस 21 ऊपर नीचे साइन कॉमन है, कट करो उसको, जो आंसर आएगा वो मिलेगा पॉजिटिव. राइट, 672 डिवाइडेड बाय 21. अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. किस तरह से? दो मेथड से कर सकते हो. या तो आप उसको रेगुलर डिवाइड भी कर सकते हो या फिर कट आउट करके भी कर सकते हो. पहले हम यहाँ पे एक मेथड देख लेते हैं. 672 डिवाइड बाय 21. अब 21 के टेबल में 67 पॉसिबल है या नहीं? नहीं. सो 21 3 जा 63. So 21 multiplied by 3 will give you 63. Okay. अब 67 minus 63 करो कट आउट. 7 minus 3 is 4. 6 minus 6 is 0. 2 comes down, that is, and this will become 42. Right? So 21 के टेबल में 42 आता है नहीं आता है? Yes. 21 2 जा कट. ओके, सो मैं आंसर क्या मिला? ये थी सिंपल डिवीजन की मेथड. अब हम उस चीज को कट कैसे कर सकते हैं? यहां पे देख लीजिए, एक आपके पास है 672 और दूसरा है डिवाइडेड बाय 21. अगर कोई नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है वो हमें देखना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? देखो, नंबर जो भी आपको दिया उसका एडिशन करो. 2 plus 1 3, right? 3 comes in the table of 3. Yes. 6 plus 7 13. 13 plus 2 15, right? So 15 is in the table of 3. Yes. So 3 and 15 both are in the table, right? So हम इसको कट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर इसको कट करें तो ये होगा 7 जा 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 2, 3 4 जा 12, 224. अब it is not possible to calculate. So we have got both the 3 7s are 21 and 3 into 224, right? अब ये 3 के टेबल में पॉसिबल नहीं है. Let us check this. 2 plus 2 4 plus 4 8. So this is also not possible. Is this possible in the table of 7? Let us do. 7 1s are 7 3s are 21. 1 remainder and 4 comes down. It becomes 14. And 7 2s are 14. So 32 divided by 1. So this will result in 32. So this is your answer. We have solved using the division method and we have done like this also. Both the methods are correct. You can use any one of these to get your answer. Okay? So this was about division of integers. Let us do few more sums. So student, here is your next question. Minus 768. Minus 768 is divided by 32. Right? So let us do it. See, the last digit of both the numbers. Last digit of both the numbers are even. So it is divisible by 2. इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं. राइट, पहली मेथड यहाँ पे देख लेते हैं. 768 डिवाइड बाय 32. अब 32 1s are 32, 32 2s are 64. Okay, so 32 into 2 64.
2 2s are 4, 2 3s are 6. But 6 minus 4 is 2, 7 minus 6 is 1, and 8 comes down because 12 is not divisible by 32, right? So 32, 2 is 64, 32 into 4 will give us 128. 32 into 4 will give you, see, 4 2s are 8 and 4 3s are 12. You get 0 0. So आंसर क्या मिला? 24. But it would be minus, क्योंकि minus plus is minus. So minus 24 is your answer. अब हम उसको दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं. कौन सी? 768 माइनस है तो माइनस रखो. 768 डिवाइड बाय 32, राइट? सो 32 के टेबल में पॉसिबल है या नहीं है? यस, इट इज पॉसिबल फ्रॉम दिस वे. वी नो दिस आंसर, राइट? सो लेट अस सॉल्व इट. अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आप 2 भी यूज कर सकते हो. हम 32 यूज करेंगे. 32 1s are 32 2s are 64, 1 2 and 8, so 32 4s are, but this will be giving you minus 24 divided by 1, which results into minus 24. So this is your answer, minus 24. Let us do one more example. We will take the numbers like 0 divided by 0 or so we will get the answers, right? So हमने ये पढ़ा कि अगर कोई नंबर को आप किसी नंबर के साथ डिवाइड करें तो उसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है. पर अगर हम कोई नंबर को 0 के साथ डिवाइड करें या फिर 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करें तो क्या हमें आंसर मिल सकता है या नहीं? देखो, कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूं कि 25 डिवाइडेड बाय 0, फिर सेकंड में ले रहा हूं माइनस 25 डिवाइडेड बाय 0, थर्ड 0 is divided by 25, fourth 0 divided by minus 25. अब हमें ये तो पता है कि अगर कोई नंबर है उसको आप 0 के साथ ऐड कर रहे हो. सपोज 2 plus 0 will give you 2, 2 minus 0 will give you 2, 2. अगर कोई नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर 0 आने वाला है, राइट? तो सेम वे अगर कोई नंबर है उसको आप 0 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो क्या हमें 0 मिलेगा? यस और नो? नो. इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 वी विल नॉट गेट 0 itself because the answer for the questions like this is not defined. अगर कोई नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर इनफाइनाइट है. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड. सो 25 डिवाइड बाय 0 is not defined. अगर नंबर नेगेटिव है तो भी आंसर सेम रहेगा. is not defined. is not defined, right? पर अगर 0 को किसी नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, उसका आंसर 0 आएगा. इफ 0 is divided by a positive number, a negative number, each and every kind of number. 0 के साथ आप कोई भी नंबर ले लो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो आपको उसका आंसर 0 ही मिलेगा. क्या मिलेगा? 0 divided by 25 will give you 0. 0 divided by minus 25 will give you 0, not minus 0 because 0 is a neutral number. Okay?
सो ये था आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी नंबर को दूसरे इंटीजर्स मतलब दो इंटीजर्स को डिवीजन कर रहे हो, अगर उसका आंसर पॉसिबल है वी कैन राइट। अगर जीरो को किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका आंसर जीरो आने वाला है। पर कोई नंबर ले रहे हो जिसको आप जीरो के साथ डिवाइड करना चाहते हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सो द आंसर इज नॉट डिफाइंड। एनी नंबर, लिसन मी केयरफुली, if any number, whether it is a positive integer, a negative integer, a decimal, a fraction, a whole number that is divided by zero, कोई भी नंबर है जिसको आप जीरो के साथ डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा, the answer is not defined. Okay, so this was our division of integers. On base of this I am going to give you few questions in homework, try to evaluate them. If you are not getting, just focus on this. Please do not use any kind of mobile phones, calculators for division. Alright? Thank you students. Hope you are staying well and healthy with your family. Thanks a lot.